Hello friends, how are you doing all? Hope you all are doing great. So welcome back to another session of practicing English. So first of all, happy Janmashtami to all of you guys. Today is Janmashtami, and tell me, you are keeping fast or not? If I talk about myself, then I'm not observing fast today. Okay, due to my kids, and I went to temple in the morning. I worshipped at home in the morning, but it's not completely fast. After completing my puja, then I ate the food because my baby is still feeding and I have to do household chores, I can say. So it's my health issue. That is the reason I didn't observe the fast. But tell me, you guys, how do you celebrate and what do you do? What are the things? How to decorate it? And what are the activity you do in night time? Because Janmashtami we have to celebrate in night, yeah. So there are a lot of decoration and sweets. There are a lot of activities, song, dance, music, all the things we do at home. Actually, when I was girl, I used to see in my village because in my native place where I was born, my mother and all my family member, aunties and mother, they were worship at night and they were do lot of thing. Okay, they used to singing song in night time, make hula and different sweets, and we were just waiting whole night to see what are the activity going on. So let's see. So what I'm going to practice all of you guys today. I come with one topic because nowadays we all are just listening lot of video and everyone just suggesting. You can, if your English is still not improving, then you can take subscription, you can join any paid course, you can talk with expert, talk with tutor, then maybe it will be improved. But it is possible? No, it not possible, because English will improve only and only your dedication and practice. It doesn't matter how many classes you are join and how many classes you are taking every days, how many sessions you are watching. It's not going to help until and unless you are not practicing. It means your English is not going to improve it. Only watching video, only talking with different people, maybe still you are not going to see any kind of changes. So what you have to do, you have to learn grammar rules, because we can't deny it, we can't overlook the grammar rules completely, because grammar is a backbone of our speaking. We know that, we know very well. So today I just want to practice passive, simple present का passive, क्योंकि बंद कर दिए. पानी छत पे पानी छोड़े थे खोल के. So I'm going to practice with you. I just want to tell how to practice passive. Okay, passive present indefinite का passive हम कैसे बनाते हैं. देन कबूतर में सब लटकल रहता है ना, चींटी भी लग जाता है उन लोगों के चक्कर में. छोड़ेंगे ना नीचे वाला मत देना, कंकड़ लग. इतना आखिर डलते जाइए तो नहा लीजिए ना. कपड़े लेने, लेकिन उठा देंगे हिंगे लेता है तो टब्बल ले वो थी लेते आते जी ड्रामा था नहीं होगा तो उठा देंगे. So actually my mother-in-law, she came on roof. You can see what I'm doing here. I'm just sitting. You know what, ये क्या है, ये गेहूँ है जिसे हम वीट बोलते हैं. तो इसे सूखने के लिए डाला गया छत में. ठीक है, she spread it in the morning. So sometimes its weather looks like cloudy,
dark clouds, so we feel like it will be rain. Okay, so that is the reason I am here. I have to क्या बोले से उठाना है, ठीक है, तो इन सबको उठा के रखना है. दैट इज़ द रीज़न. एंड देन आई थॉट लेट मी रिकॉर्ड द वीडियो. ओके, वाई वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम. सो लेट्स सी. हाँ, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनाते हैं. लेट्स सी. लाइक अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ बैठी हुई, दिस इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, आई सिट हेयर. देन हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इन पैसिव. लाइक आपको सिंपल रूल याद करना. आप स्कूल वाला रूल भूल जाओ. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज करने के लिए इज़ एम आर तो रहेगा ही, और साथ ही साथ थर्ड फॉर्म. ये आपको माइंड में फिक्स कर लेना होगा कि बिना थर्ड फॉर्म का हम पैसिव नहीं कर सकते. ओके, तो मैं यहाँ बैठी हूँ. आई सिट हेयर. हाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इन पैसिव. आई एम सेट हेयर. सिट सेट सेट, ठीक है. सेट हेयर. जैसे मैं वॉक करती हूँ, ठीक है. लेट्स सी, मैं वॉक करती हूँ. आई वॉक इन द मॉर्निंग. आई एम वॉकड इन द मॉर्निंग, ठीक है. ये हमारा पैसिव है. मैं पानी पीती हूँ. आई ड्रिंक वाटर. अब मुझे पानी पिलाया जाता है, मतलब सेंटेंस हिंदी का वर्ड चेंज हो जाएगा. जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ. आई सिट हियर, मैंने उसका हिंदी नहीं बोला, तो मुझे यहाँ बैठाया जाता है. आई एम सेट हेयर. मैं वॉक करती हूँ. आई वॉक इन द मॉर्निंग. मुझे मॉर्निंग में वॉक कराया जाता है. आई एम वॉकड इन द मॉर्निंग. मैं पानी पीती हूँ. आई ड्रिंक वाटर. मुझे पानी पिलाया जाता है. आई ड्रिंक ड्रैंक ड्रैंक, है ना. तो आई एम ड्रैंक वाटर. ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, हम गलत बोल रहे हैं क्या. ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, हाँ. आई एम ड्रैंक वाटर, ठीक है. मैं सोती हूँ. आई स्लीप बोलते हैं. अब मुझे सुलाया जाता है. आई एम स्लैप्ड. मैं खाती हूँ. आई ईट. मुझे खिलाया जाता है. आई एम ईटन. तो आप इस तरह से, लेट्स से खड़ा होने दो, ठीक है. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ. जैसे मुझे पढ़ाया जाता है. आई एम टॉट. उसे लिखाया जाता है. ही इज़ टॉट. ही इज़ राइट रोट रिटेन, ठीक है. उसे लिखा जाता है. मीरा को स्कूल भेजा जाता है. मीरा इज़ गॉन टू स्कूल. गो विन गॉन. थोड़ा सा आपको इसमें थर्ड फॉर्म का नोटिस करना होगा, क्योंकि पैसिव में हम थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं और कोई भी टेंस का, सॉरी, वर्ब का फॉर्म नहीं होता है. और जब भी हम सिंपल प्रेजेंट का पैसिव कर रहे हैं तो उसमें इज़ एम आर रहेगा. अब नेगेटिव में देख लेते हैं. जैसे हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने में क्या करते हैं, डू और डज लगाते हैं, ठीक है. लेकिन जब हम पैसिव का नेगेटिव करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का नेगेटिव करेंगे, तो वहाँ इज़ एम आर तो रहेंगे, साथ में साथ नॉट लग जाएगा, ठीक है. इसमें डू डज का कोई काम नहीं. और हमारा साइड बाय साइड थर्ड फॉर्म तो चलेगा. जैसे मुझे स्कूल नहीं भेजा जाता है. आई एम नॉट गॉन टू स्कूल. गो विन गॉन. मुझे खाना नहीं खिलाया जाता है. आई एम नॉट ईटन फूड. मुझे नहीं, रोहन को नहीं पीटा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज़ नॉट बीटन. या बोलो आप, रोहन को सुलाया नहीं जाता है, या रोहन को खेलने नहीं दिया जाता है. रोहन इज़ नॉट प्लेड. नॉट टू प्लेड. तो इस तरह से यू हैव टू प्रैक्टिस योर पैसिव. लर्न वन बाय वन. वॉक स्टेप बाय स्टेप. कहने का मतलब है आप छोटी छोटी चीज़ें सीखो, लेकिन बिना ग्रामर के आप आगे नहीं भाग सकते हैं. कब तक हम इमिटेशन करके इंग्लिश सीखेंगे, कब तक आप दूसरों को वर्ड को सुनेंगे और उसे इमिटेट करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. बिकॉज़ होता है ना, कुछ दिनों में फिर हमें वही डिमोटिवेशन आ जाता है कि अब क्या, अब क्या, अब क्या, है ना. तो आपको खुद प्रैक्टिस करना है, बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है. और बोलना क्या, रैंडमली कुछ भी नहीं. एक रूल सीखो, उस पर आप वीडियो बनाओ, उसकी प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा उसे यूज करो. तो थैंक यू सो मच. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. अब मैं चली गेहूँ उठाने. अगेन इट्स क्लॉडी एंड नाउ आई एम गोइंग टू, सब उठाने जा रही हूँ. और आई हैव टू डू
other works, because here lot of clothes also. I have to pick up all this thing. Thank you so much. Thank you so much.